Good morning, my dear students. Today, the date is 20th of November 2021, Saturday, and this day we are studying in your CG board class 10 Social Science, Mineral Resources and Industrialization. This is the part 7 of this video lesson series. As you know, the methodology, read from your book with me, ready with pen and paper. Today we will study about the market, labor and capital. This is page number 50. First, read from your book till page number 50, market. In this lesson, I am going to scroll down very slowly. Complete the reading. You will cover part 1 to 6. First, read so that there will be connectivity of your previous learning. Revision is very important. Revision is the key to success. If it is whenever you are studying the next part, and as you know, here in this video lesson also you will get line by line in the explanation or interpretation of your social science lessons, so that you will have a clear cut idea about what is the lesson about, what is the subject matter, and you can write the answers in your own words. So I hope you are ready with pen and paper. Read from your book. Let's start. This is the part 7. Market, bazaar. A product is consumed through the market. किसी भी वस्तु के उत्पादन के बाद उसकी बाजार में खपत होती है. So all produce has to be taken to the market. अतः सभी उत्पादों को बाजार तक ले जाना होता है. The constantly changing nature of markets also impacts the setting up of industries. यानी साथ ही लगातार बदलते हुए बाजार के स्वरूप भी उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. When we say market, it just does not relate to reducing transportation cost, but also increasing consumption of new products and ensuring consumers' interest in the product is retained by making the produce attractive and ensuring quality. देखिए इसका मतलब क्या है. इस थोड़ा सा लंबा लाइन हो गया है. पैरा इस लाइन में एक ही लाइन में थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा. बाजार से तात्पर्य केवल परिवहन खर्च कम करने से नहीं है, बल्कि बाजार में नए नए उत्पादों की खपत के साथ साथ लोगों का उत्पादों के प्रति रुझान बनाए रखने के लिए वस्तुओं का आकर्षक होना एवं गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो गई है. ठीक है. साथ ही साथ मानक बाजार की ज़रूरत होती है. देखिए, साथ ही मानक यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी बाजार की भी ज़रूरत होती है, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो. देखिए, एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइजेशन so that a product is demanded and consumed over a large area. जैसे आपको मैंने कहा, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस लाइन का मतलब है, जैसे यहाँ से लिखा हुआ है कि साथ ही मानक बाजार की भी ज़रूरत होती है, जिससे दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह के उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो. टू सेल द प्रोडक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड
people need to have a similar thought, interest, and consumption pattern throughout the world. जैसे आपको मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब लाइन में है कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक तरह की उत्पाद की मांग करें, अर्थात लोगों की सोच, रुचि व खपत में समरूपता हो. To understand, we can consider the example of mobiles in the last 25 years. पिछले 25 सालों के दौरान मोबाइल के उदाहरण से उसे समझा जा सकता है. In 1991, very few companies used to manufacture mobile sets and very few people owned them because they did not have access. देखिए क्या है कि शुरुआती दौर में 1990-91 में बहुत ही कम कंपनियां मोबाइल बनाती थी तथा मोबाइल भी कम लोगों के पास होता था क्योंकि लोगों की पहुंच कम थी. टुडे a number of companies manufacture mobile sets. आज बहुत सारी कंपनियां मोबाइल बनाती है. To keep themselves afloat in the competitive market, they constantly introduce new features and designs at cheaper rates than before. बाजारों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए कंपनियां अपने नए फीचर के साथ अलग अलग आकार, डिजाइन, सस्ते मूल्य पर मोबाइल को बाजार में लाती है. दिस कीप्स द कंज्यूमर्स अट्रैक्टेड एंड द कंपनीज मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट. जिससे वे ग्राहकों का आकर्षण अपनी ओर कर सके तथा बाजार में अपने को पुनः स्थापित कर सके. Now here, beta, e-commerce. Till some time back, you could only have imagined that you can buy mobiles, watches, clothes, books, toys, etc. sitting at home. आप पहले कभी सिर्फ कल्पना करते रहे होंगे कि काश अपने घर में बैठे मेरे पास मोबाइल, घड़ी, कपड़े, किताब, खिलौना, घरेलू सामान आ जाए. टुडे इट इज़ अ फैक्ट. अब यह कल्पना नहीं, वास्तविकता है. टुडे इट्स अ फैक्ट. यू कैन ऑर्डर फ्रॉम योर मोबाइल और कंप्यूटर एनीथिंग एंड पे थ्रू योर ATM कार्ड और यू पे व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड. आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ऑर्डर करें, अपने ATM से भुगतान पेमेंट करें या अपना सामान आने के बाद पेमेंट करें. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. राइट, यही है ई कॉमर्स. यही ई कॉमर्स है. द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया हैज बूस्टेड ई कॉमर्स. भारत में इंटरनेट और मोबाइल यूजर्स की बढ़ती संख्या ई कॉमर्स के बढ़ने की प्रमुख वजह है. एज पर अ रिपोर्ट, ई-कॉमर्स मार्केट इज इंक्रीजिंग बाय 50% ईच ईयर. एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार सालाना 50% की दर से बढ़ रहा है. ऑन द अदर हैंड, ई-कॉमर्स मार्केट इन चाइना इज इंक्रीजिंग बाय 18% एंड दैट ऑफ जापान बाय 11%. वहीं चीन का ई कॉमर्स बाजार 18% और जापान का 11% सालाना की दर से बढ़ रहा है. 75% of all those making purchase on the internet in India are in the age group of 15 to 34 years. देश में ऑनलाइन खरीदारी करने वालों में 75% की उम्र 15 से लेके 34 साल है. Now, my dear students, the topic here is labor. Labor, श्रम. Skilled and trained labor. Skilled and trained labor is needed to work in industries. उद्योगों में काम करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों की आवश्यकता होती है. One also needs skilled managers,
सेक्रेटरीज, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एक्सेट्रा। साथ ही कुछ कुशल मैनेजर, वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि की ज़रूरत होती है। Industrialization also mandates for a few people to think out of the box, make new discoveries, find solutions to problems, and think differently from the crowd. औद्योगिकरण की यह भी ज़रूरत है कि कुछ लोग लीक से हटकर सोचें, नई नई चीज़ों की खोज करें, समस्याओं के नए हल खोजते रहे, अर्थात लोग सृजनशील और भीड़ से हटकर सोचने वाले बने। Developed countries have a large pool of skilled workers, but wage levels are high as the workers are organized and fight for their rights. विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत भिन्न रूप में है। सघन जनसंख्या वाले देशों में बेकारी की समस्या गंभीर है, अतः वे सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। वे अधिकांशतः अशिक्षित होते हैं और आधुनिक उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। देश के कई कारीगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन है मैं पहले से इसलिए बताया ताकि इसको आप समझ सकिए। राइट, द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इज वेरी डिफरेंट, इसको फिर से रिपीट करूँगा। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड वर्कर्स बट वेज लेवल्स आर हाई एज द वर्कर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। कंपेयर करेंगे, इसमें क्या हुआ है कि देख यहाँ पे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट, जो विकसित देश हैं, उसमें क्या है कि जो विकसित देश है डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें स्किल्ड वर्कर्स तो हैं, ट्रेंड वर्कर्स तो हैं, लेकिन वेज लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वर्कर्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, फाइट फॉर देयर राइट्स। राइट, फाइट फॉर देयर राइट्स। अब यहीं पे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इज वेरी डिफरेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में कि द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इज वेरी डिफरेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, कि विकासशील देशों में मजदूरों की समस्या बहुत अलग है, भिन्न है। इन दीज डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज, इन दीज डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज यानी सघन जनसंख्या वाले देश, पॉपुलेटेड कंट्रीज, देयर इज प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेकारी की समस्या गंभीर है। सो पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, अतः सस्ते में काम करने के लिए मजदूर तैयार हो जाते हैं। बट दे आर ऑल्सो लैकिंग इन स्किल्स, लेकिन उनमें कुशलता की कमी होती है। दे आर पुअरली एजुकेटेड एंड ऑफन अनलेटर्ड टू and are unable to meet the needs of modern industries, और अधिकांश अशिक्षित होते हैं। देखिए, दे आर पुअरली एजुकेटेड एंड ऑफन अनलेटर्ड टू, अशिक्षित होते हैं और दे आर अनेबल टू मीट द नीड्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और आधुनिक उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। ठीक, अब मैनी वर्कर्स हैव हैड टू बी सेंट अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, अतः देश के कई कारीगरों को कुशलता हासिल करने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ता है या पड़ा है। राइट, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट, देखिए, a significant change in employment pattern in recent times is of companies hiring much lesser permanent employees। देखिए, रोजगार के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि कंपनियों ने अब स्थायी मजदूर व कर्मचारी रखना कम कर दिए हैं। दे कीप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, हायर वर्कफोर्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड आउटसोर्स वर्क, और वे अस्थायी या ठेके पर मजदूर रखने लगी है
या काम का आउटसोर्सिंग करने लगी है। दिस हेल्प्स कंपनीज सेव इन लेबर कास्ट। इससे कंपनी की श्रम लागतों में काफ़ी बचत हो रही है। द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। यह परिस्थिति क्या है बेटा कि जो डेवलप कंट्रीज या विकसित देश में है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों की परिस्थितियों से बहुत भिन्न है। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, इफ देयर आर ट्रेड यूनियंस इन योर एरिया, फाइंड आउट अबाउट देम। आपके क्षेत्र में संगठित मजदूर हैं तो उनके बारे में पता करें। What are the efforts being made to develop skills of workers in your area? यानी आपके क्षेत्र में मजदूरों की कुशलता बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कैपिटल। औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है पूंजी, यानी औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण ज़रूरत है पूंजी की। टू मेक अवेलेबल कैपिटल मैनी इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी इस्टेब्लिश्ड। पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई संस्थाओं का स्थापित होना आवश्यक है। शेयर मार्केट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। शेयर मार्केट, बैंक और बीमा कंपनियां इसके उदाहरण हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस हेल्प इंडस्ट्रियलिस्ट टू एक्सेस कैपिटल टू सेट अप फैक्ट्रीज, राइट। इनके होने से किसी भी उद्योगपति को कारखाने लगाने के लिए जरूरी पूंजी उपलब्ध होती है। इंस्टीट्यूशंस सच एज बैंक्स एग्जिस्ट so that people do not let their wealth lie idle but invest them to earn profit, right? लोग अपना धन खाली और अनुपयोगी न रखें और उसे लाभ कमाने के लिए निवेश करें। इसके लिए बैंक जैसी संस्थाएं जरूरी है। प्राइवेट कैपिटल इज इन्वेस्टेड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, राइट। उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी केवल व्यापारिक तथा लाभ की दृष्टि से लगाई जाती है। सच कैपिटल इज इन्वेस्टेड ओनली इन प्लेसेस वेयर प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। और इस प्रकार की पूंजी से उन्हीं स्थानों पर उद्योग स्थापित होते हैं जहां लाभ की संभावना निश्चित हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ private capital in textile mills in Mumbai had happened for the same reason। जैसे मुंबई के कपड़ा उद्योगों में व्यक्तिगत पूंजी का आकर्षण इसी दृष्टिकोण से हुआ था। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो द सेम लॉजिक। देखिए क्या है कि जैसे विदेशी व्यक्तिगत पूंजी भी इसी लक्ष्य से उद्योगों में लगाई जाती है। इसके विपरीत सरकारी पूंजी निवेश केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो द सेम लॉजिक, यानी इस विपरीत अभी जो मैंने बताया कि सरकारी पूंजी केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। सरकारी पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स दैट ड्राइव गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास तथा प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग संतुलित विकास को ध्यान में रखकर सरकारी पूंजी का निवेश किया जाता है। द स्टील प्लांट एट भिलाई इज अ केस इन पॉइंट। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अभी नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, इफ देयर वर नो बैंक हाउ वुड वन एक्सेस कैपिटल। यानी अगर बैंक नहीं होते तो पूंजी किस तरह उपलब्ध हो पाती। Once again read the above paragraph and you will able to write the answer. Anyhow you will get the answers of all these questions in the PDF form in my
WhatsApp group, right? And we will discuss in the classroom everything. Next point, it is technology. टेक्नोलॉजी को कहते हैं हम हिंदी में प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, राइट? द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द more modern the technology, the cheaper and easier it becomes to produce in larger quantities. इस लाइन का मतलब है कि प्रौद्योगिकी जितनी आधुनिक होगी उतना ही सहज एवं निम्न लागत पर ज़्यादा उत्पादन संभव हो सकेगा. Availability of modern technology has led to higher industrialization of developed countries, whereas the lack of development of modern technology has led to slower industrialization in developing countries. विकसित देशों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी होने के कारण वहाँ औद्योगिकरण बहुत अधिक संभव हुआ है, जबकि विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी के कम विकास से उद्योगों का कम विकास हुआ. Industrialization requires new research and new technology so that production increases. इसके लिए नए नए अनुसंधान, नई तकनीकी का विकास आवश्यक है जिससे ज़्यादा उत्पादन हो सके. हाई क्वालिटी स्टील फ्रॉम हाई क्वालिटी आयरन ओर इज अ पॉसिबिलिटी. जरा सोचे कि उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क से तो उच्च गुणवत्ता युक्त लोहा इस्पात का निर्माण किया जा सकता है, बट हाई क्वालिटी स्टील फ्रॉम पुअर क्वालिटी आयरन ओर इज पॉसिबल ओनली थ्रू रिसर्च. लेकिन कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से उच्च गुणवत्ता के लौह इस्पात का निर्माण किस प्रकार संभव होगा? यह नए अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो सकता है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स दैट हेल्प प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट. नई नई स्वचालित मशीनों के उपयोग से सर्वाधिक व गुणवत्ता युक्त उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी विकास व उसकी संभावनाओं को तलाशना महत्वपूर्ण हो गया है. Making effort to find out about other countries using communication methods has become very vital and helps industrialization. दुनिया के अन्य देशों के बारे में सूचना के माध्यम से पता करना औद्योगिकरण में मददगार साबित होता है. Today there is lots of competition between companies, which makes imperative the use of latest technology to ensure quality and scale. मतलब आज कंपनियों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि अत्याधुनिक व गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए आधुनिक व नई तकनीक का उपयोग करें. For this, many companies tie up or enter into partnership with companies that have new technology. इसके लिए कई कंपनियां नई तकनीक वाली कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज हीरो कंपनी tied up with Honda company of Japan and produced हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स. उदाहरण के लिए भारत की हीरो कंपनी ने जापान की कंपनी होंडा के साथ मिलकर हीरो होंडा मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन हियर इज अ क्वेश्चन. ट्राई एंड फाइंड आउट विच इंडियन कंपनीज हैव टाइड अप विद कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन. मतलब आप पता करें कि देश की कौन कौन सी कंपनियों ने दूसरे देशों के साथ मिलकर उत्पादन शुरू किया है. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब औद्योगिक नीति. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसी टू. उद्योग की स्थापना सरकार की नीति पर निर्भर करती है. If the industrial policy
does not have liberal terms for industry, industrialists will not choose to set up industries in that country. यदि सरकार की औद्योगिक नीति में उद्योगों की स्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा. इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्ट इन कंट्रीज where the policies are flexible, where government interference is minimum, and where basic facilities such as labor, electricity and transport is organized. देखिए, इसका मतलब ये है कि उद्योगपति ऐसी देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीतियां लचीली होती हैं, जहां शासन अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम से कम करे और कम से कम हो, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली व यातायात व्यवस्थित हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब नई औद्योगिक नीति का प्रभाव. 3 main policies have been made which are as follows. 3 प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं जो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण. लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स मेकिंग इजी द रूल्स एंड प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग लाइसेंस एंड परमिट्स सो दैट foreign companies set up factories in India using new technology. देखिए, इसका मतलब है उदारीकरण का अर्थ है नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस परमिट राज को कम करना, जिससे विदेशी कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी व तकनीक के साथ भारत में कारखाने लगा सके. दिस स्टेप was taken to boost industrial development in the 7th 5-year plan. यह औद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय है जो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में अपनाया गया. It was further promoted in the 8th 5-year plan. यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे और अधिक प्रोत्साहित किया गया. सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन निजीकरण. सेलिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट प्लेयर्स बाय द गवर्नमेंट इज प्राइवेटाइजेशन. सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजीकरण कहलाता है. बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, डिमांड्स अरोज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ private players is also to close down public enterprises chronically in loss. मतलब विगत सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में घटते लाभ को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, घाटे में चल रहे बीमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी. To resolve the constant problems in the public sector enterprises, government adopted the policy of disinvestment for public sectors. सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की नीति अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का मार्ग खोल दिया. एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, गवर्नमेंट बिगेन टू सेल ऑफ पार्ट्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस. इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंशों को बेचना आरंभ किया. एज अ रिजल्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर in management increased and additional resources could be generated. इससे इनके प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अतिरिक्त संसाधनों का एकत्रीकरण भी हुआ.
थर्ड पॉइंट माय डियर स्टूडेंट इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। As a result of the process of globalization since the 1980s and 1990s, not just capital but services, labor, and resources began to freely move from one country to another. 1980 व 1990 के दशक में शुरू हुई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं। द मेन स्ट्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन was on increasing competition between national and international firms। देखिए वैश्वीकरण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर है। We can understand globalization in two ways। अब वैश्वीकरण को हम दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट, an economic and political process under which production and distribution become international। एक आर्थिक व राजनीतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरण का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। बैरियर्स इन मूवमेंट, राइट, बैरियर्स इन मूवमेंट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड कैपिटल, लेबर, थॉट एंड कल्चर वर रिड्यूस्ड so that all these could be exchanged across the world without hindrance। देखिए इसका अर्थात देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारों व संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी यह है उनका खात्मा, ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बेरोक टोक लेन देन हो सके। Second, here policies to enhance industrialization, which we also call liberalization policy। वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियाँ जिन्हें हम उदारीकरण की नीतियाँ भी कहते हैं। So, dear students, this is sufficient in this video lesson। Go through the lessons again, read it, and if you have any doubt, underline and write your question. We will discuss in the class. Till then, I say goodbye to you in the next video lesson, and I hope it will be the last, right? We will complete just in one video lesson। The point will be major industrial regions of India, and here the second point in the next video lesson we will discuss the next point। Here will be the last point in the next video lesson। It will be the impact of industrialization, औद्योगिकरण के प्रभाव, right? So here till this point your read the lesson, and tomorrow you will get the next video lesson।